Hello dear students, welcome to the class. In today's lecture we will discuss the classification of phylum chordata. आज के लेक्चर में हम phylum chordata का classification discuss करेंगे. Before that we should know that what are chordates, who are chordates. Chordates कौन होते हैं? Chordates are those animals which possess notochord, because the word chordata is made from two words, that is chordi and eta. Chordi means cord and eta means bearing. So all those animals which bear a cord, that is the notochord, are known as chordates. Okay. Some general characters of notochord are chordates are notochord present, they are bilaterally symmetrical, metamerically segmented, triploblastic, truly coelomate, deuterostome. They have dorsal nerve cord and pair gill or gill slits. Okay, these chordates are present from Cambrian period to recent time. So the general characters of chordata we have discussed in earlier lecture. You can go through the lecture to know the general characters of chordata. In today's lecture we will focus on classification of chordata. The phylum chordata is firstly divided into two groups, that is the protochordata and the euchordata. Protochordata is also known as acrania and euchordata is also known as craniata. This division is on the basis of presence or absence of cranium or skull or the brain box. All those animals in which the cranium or the skull or the brain box is not present or it is absent, they are included in group protochordata or acrania or acraniata. A means absent, crania means the cranium, the brain box. While all those animals which possess the brain box or which have the brain box are included in craniata. Okay. Then protochordata, proto means some primitive type of animals, primitive chordates, and eu means new, eu new means new chordates. So protochordates are those chordates which possess the notochord. Notochord is a stiff rod like structure. So these protochordata or acraniata group, they possess the notochord. In case of euchordates, the notochord is modified into vertebral column. So first we will discuss the classification of the protochordata. Okay, protochordates are those animals which are marine. They are small primitive animal. They are lower chordates. They do not possess head or head is absent. Skull or cranium is absent. That's why they are included in craniata. Then vertebral column is absent. Jaws and brain is absent. All these structures are absent in these animals. Protochordates are the primitive chordates which possess notochord. They have notochord in some stage of their life. Either it can be present throughout their life or at some stage of their life. Maybe in the larval stage it is present and in adult absent, or maybe in adult it is present and absent in the larval stage. This group protochordata is further divided into three subphylums, which is known as hemichordata, urochordata and cephalochordata. Now what does the word hemichordata means? Hemi means half, chordata means cord bearing. Okay, so all those chordates which possess the notochord in half of their body, वो सारे chordate जिनके हाफ शरीर में या आधे शरीर में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनको हम हेमिकॉर्डेटा में इंक्लूड करते हैं. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. यहाँ पे जो हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इट इज़ समवॉट डाउटफुल. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस notochord present in hemichordata is not exactly the same as the structure of exact notochord, and that's why this notochord is known as stomochord.
इट इज़ नोन एज स्टोमोकॉर्ड। ओके, मतलब कि जो नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑल्दो यहाँ नोटोकॉर्ड पाई जाती है, हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उनके हाफ बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बॉडी उनकी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड यहाँ पाई जाती है ये थोड़ी सी डाउटफुल है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, और ये सिर्फ प्रोबोसिस वाले रीजन में कन्फाइंड होती है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस रीजन, सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में पाई जाती है। और इसलिए हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द नोटोकॉर्ड। ओके, तो इसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। नाउ हेमिकॉर्डेटा ग्रुप को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ एंट्रोप्यूनेस्टा एंड द सेकेंड इज़ टेरोब्रांचिया। पी साइलेंट है टेरोब्रांचिया में, इट इज़ PTERO, बट वी प्रोनाउंस इट एज टेरोब्रांचिया। सो 2 क्लासेस हैं इसमें, एंट्रोप्यूनेस्टा एंड टेरोब्रांचिया। एंट्रोप्यूनेस्टा में जो एनिमल्स आते हैं इनकी बॉडी लार्ज होती है, बड़ी होती है, वर्म लाइक, गिल स्लिट्स, दे पोजेस न्यूमरस गिल स्लिट्स। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एंट्रोप्यूनेस्टा एंड टेरोब्रांचिया। एंट्रोप्यूनेस्टा के मेंबर्स में गिल स्लिट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेरोब्रांचिया में गिल स्लिट्स जो हैं वो या तो नहीं होते या 1 पेयर पाए जाते हैं। ओके, देन एंट्रोप्यूनेस्टा के मेंबर्स में इंटेस्टाइन स्ट्रेट होती है एंड दे आर कॉमनली नोन एज एकॉर्न वर्म और टंग वर्म। इनको कॉमनली एकॉर्न वर्म या टंग वर्म कहते हैं। टंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनके प्रोबोसिस का, आगे से प्रोबोसिस टंग जैसी लगती है, सो दे आर नोन एज टंग वर्म। फॉर एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर मेंबर्स ऑफ दिस क्लास एंट्रोप्यूनेस्टा। देन टेरोब्रांचिया में दे हैव अ स्मॉल बॉडी, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, गिल स्लिट्स इसमें 1 पेयर पाया जाता है, आइदर इट इज़ 1 पेयर और इट इज़ एब्सेंट। देन इंटेस्टाइन यू शेप्ड है, इंटेस्टाइन इज़ यू शेप्ड, एंड जो गिल्स हैं इसके दे आर टेरोब्रैंकस। टेरोब्रैंकस मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 2 words, टेरॉन एंड ब्रैंकियन। टेरॉन मीन्स फेदर और ब्रैंकियन मीन्स गिल। दिस मीन्स दैट देयर गिल्स आर लाइक फेदर्स, मतलब जो इनके गिल्स हैं ये फेदर्स की तरह शेप में या देखने में फेदर्स की तरह लगते हैं, एंड सो दे आर नोन एज टेरोब्रांचिया। फॉर एग्जाम्पल सिफेलोडिस्कस। सिफेलोडिस्कस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस phylum. So this is subphylum Hemichordata. Now we move to the second subphylum, that is Urochordata. Uro word means tail. Uro word का मतलब tail होता है. It is O-U-R-A, aura word that means tail, and chordata means cord bearing. So all those animals which possess their notochord in their tail region, वो सारे एनिमल्स जिनकी नोटोकॉर्ड उनके टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, दे आर इंक्लूडेड इन यूरोकॉर्डेट्स. ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ स्किन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ट्यूनिक. ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन पाया जाता है वैसे इनकी बॉडी पे भी एक कवरिंग पाई जाती है जिसको ट्यूनिक कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज, दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा. नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड ओनली टेडपोल लार्वा में पाई जाती है. इन दीज एनिमल्स यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो सिर्फ टेडपोल लार्वा में पाई जाती है. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एडल्ट, एडल्ट में नहीं पाई जाती है, ओनली प्रेजेंट इन टेडपोल लार्वा. एडल्ट सैक लाइक या बैग लाइक होता है, ऑफन सेसाइल होता है, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज़ नोन एज ट्यूनिक के अंदर जो है वो एडल्ट प्रेजेंट होता है. ओके, सो ये यूरोकॉर्डेटा का बहुत ही खास कैरेक्टर है कि इनमें जो कॉर्डेट का कैरेक्टर है दैट इज़ प्रेजेंट इन ओनली इन द लार्वल स्टेज. एडल्ट में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं पाया जाता. अगर हम यूरोकॉर्डेटा के एडल्ट्स को देखेंगे तो वी कैन नॉट से दैट दे आर कॉर्डेट्स बिकॉज दे डू नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड, नीदर नर्व कॉर्ड नॉर गिल स्लिट्स. ओके, सो
ये सारे ही कैरेक्टर्स इनके लार्वा में पाए जाते हैं और इसीलिए इस फाइलम के मेंबर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना पाया जाता है जिसको कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दैट मीन्स इफ़ जो लार्वा है इसका, इट इज़ हाईली डेवलप्ड, इट पोजेस द नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, बट द एडल्ट डज नॉट पोजेस। ओके, तो लार्वा इज़ मच मोर डेवलप्ड देन द एडल्ट। तो दिस फिनोमिना, जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनाज ऑफ members of phylum Urochordata. Now these members are divided into 3 classes, that is Acidiaceae, Thalaceae and Larvaceae. Acidiaceae, the members of Acidiaceae are sessile tunicates with scattered muscles in the tunic. इनके ट्यूनिक में मसल्स जो हैं वो scattered पाई जाती हैं. They are solitary or colonial और may be compound. गिल क्लेफ्ट्स न्यूमरस पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं. एंड दे आर नोन एज एसेडियंस और सी स्क्वर्ड्स. कॉमनली इनको एसेडियन या सी स्क्वर्ड कहा जाता है. एसेडियंस, दे आर नोन एज एसेडियंस बिकॉज दे बिलोंग टू क्लास एसिडिएसी. सी स्क्वर्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो मेंबर्स होते हैं इस क्लास के एसिडिएसी मेंबर्स के जो मेंबर्स होते हैं, इनमें 2 साइफन पाए जाते हैं और इन साइफन से ये अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत तेज़ पानी की धार जो है वो छोड़ सकते हैं. जैसे कि मोलस्का में हम देखते हैं, लोलिगो या सीपिया में क्या होता है, इंक ग्लैंड पाई जाती है और वो इंक रिलीज़ करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने एनिमी से खुद को बचाने के लिए. सेम उसी तरह से यहाँ पर भी साइफन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये बहुत तेज़ पानी की धार जो है वो निकालते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए और इसीलिए इनको सी स्क्वर्ड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल हर्डमानिया. ओके, तो एसिडिएसी का एग्जांपल क्या है, हर्डमानिया. नाउ द सेकंड क्लास इज थैलेसी. थैलेसी, द मेंबर्स बिलोंगिंग टू क्लास थैलेसी आर फ्री स्विमिंग और दे कैन बी पेलाजिक ऑल्सो, पेलाजिक ट्यूनिकेट्स. ओके, सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट इन देयर ट्यूनिक. यहाँ पे मसल्स कैसी थी, स्कैटर्ड थी. यहाँ पे मसल्स कैसी हैं, सर्कुलर हैं. समटाइम्स कॉलोनियल हो सकते हैं. एंड सैल्प्स और चेन ट्यूनिकेट्स जो हैं वो इसमें आते हैं. फॉर एग्जांपल सैल्पा एंड डोलियोलम. दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास थैलेसी. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज़ लार्वेसी. लार्वेसी के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी बॉडी ये बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्री फ्लोटिंग है, आराम से स्विम कर सकते हैं. जो एडल्ट है इनका, इसके एडल्ट में बहुत सारे लार्वल फीचर्स जो हैं वो रह जाते हैं. द एडल्ट रिटेन मैनी लार्वल फीचर्स इंक्लूडिंग टेल. जो एडल्ट होता है इसका, ये बहुत सारे लार्वल फीचर्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है या रिटेन करता है, या बहुत सारे लार्वल फीचर्स इसमें रह जाते हैं. जैसे कि टेल जो है वो इनके लार्वा में पाई जाती है, एडल्ट में टेल नहीं पाई जाती नॉर्मली. बट यहाँ पर इस केस में जो लार्वेसी के मेंबर होते हैं, इनके एडल्ट में भी क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है. सो ये दे रिटेन मैनी लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट. और इनमें ओनली 2 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ 2 ही गिल स्लिट्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा. ओइकोप्लूरा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास. So this is all about subphylum Urochordata, sorry, which includes 3 classes, Acidiaceae, Thalaceae and Larvaceae. Now the next is Cephalochordata. Next subphylum in Protochordata is Cephalochordata. Cephalochordates are much advanced टाइप ऑफ एनिमल्स इन दिस प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप. प्रोटोकॉर्डेटा में सबसे ज़्यादा एडवांस जो हैं वो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं. इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल. पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है और बॉडी के एंटायर लेंथ में, मतलब बॉडी के हेड से लेकर टेल तक पूरे बॉडी में जो है वो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है. ऐसा नहीं है कि यूरोकॉर्डेटा की तरह सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, एडल्ट में नहीं प्रेजेंट है, या हेमिकॉर्डेटा की तरह सिर्फ आधी बॉडी में प्रेजेंट है. नो, यहाँ पर एंटायर लाइफ प्रेजेंट होगी, मतलब लार्वा से लेकर एडल्ट तक,
और पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगी, मतलब हेड से लेकर टेल तक या टिप से लेकर। इसमें एक क्लास आता है दैट इज़ लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्डी के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी फिश लाइक होती है, देखने में फिश की तरह होते हैं, सेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट मायोटोम्स। जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड मायोटोम्स। तो डिस्टिंक्ट सेगमेंटेशन होता है यहाँ पे। डिस्टिंक्ट मतलब जो कि विजिबल है, दिखाई देता है या समझ में आता है। तो सेगमेंटेशन कैसा है, डिस्टिंक्ट है। बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं एंड ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं या बरोइंग हो सकते हैं, बरो करके रह सकते हैं। कॉमनली इनको लैंसलेट्स कहा जाता है, देयर कॉमन नेम इज़ लैंसलेट्स। फॉर एग्जांपल एम्फिऑक्सिस या इसी को ब्रांचियोस्टोमा कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मेंबर ऑफ क्लास लेप्टोकार्डी। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लास लेप्टोकार्डी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, जिसको कि हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, जो पुराने कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है बट बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, या अगर है भी तो किसी में लार्वा में प्रेजेंट है, किसी में एडल्ट में प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ सिफेलोकॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है यहाँ पर, एक ऐसा सब फाइलम है यहाँ पर जिसमें कि पूरे लाइफ टाइम और पूरे होल एनिमल में क्या होती है, ये कॉर्डेट, ये नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट ग्रुप दैट इज़ प्रोटोकॉर्डेटा। ये क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा जो क्लासिफिकेशन है आपका वो फर्स्ट ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा का है। नाउ इसके बाद वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा। ओके, यूरोकॉर्डेटा में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और क्या क्या है उनके फीचर्स। नाउ वी विल डिस्कस दैट। Now the group B is Urochordata or Craniata. Okay. General characters of this Urochordata or Craniata is they are aquatic, either they can be terrestrial, usually large size, they are higher chordates और vertebrates भी कह सकते हैं इनको, with distinct head। एक distinct head होता है, vertebral column है, backbone present है, jaws present होते हैं, brain protected with skull या cranium या brain box, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है या ब्रेन जो है वो स्कल या क्रेनियम में प्रेजेंट है, एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेनिएटा, इसीलिए इनको क्रेनिएटा भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही सब फाइलम आता है दैट इज़ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। ऑल दोज एनिमल्स विच पोजेस वर्टिब्रल कॉलम आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। व्हाट इज़ वर्टिब्रल कॉलम? The notochord which is present in protochordates is modified into vertebral column in case of euchordates। euchordates के केस में वो नोटोकॉर्ड जो प्रोटोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट थी स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट थी, जैसे ये पेन है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रोटोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट थी, वो यूकॉर्डेट्स में मॉडिफाई हो जाती है। किस में? इट इज़ मॉडिफाइड इनटू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज होके हमारा वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। यानी जो वर्टिब्रीज होते हैं, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको वर्टिब्री कहा जाता है, और ये वर्टिब्री जो है वो मिल के क्या बनाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम बनाने का काम करते हैं। सो वर्टिब्रेट्स आर दोज जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है, यूजुअली डायसियस होते हैं, एंड ये लार्जेस्ट कॉर्डेट सबफाइलम है। जो वर्टिब्रेटा है ये लार्जेस्ट कॉर्डेट सबफाइलम है। इसमें दो डिवीजन्स होते हैं, पहला है एग्नेथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। नाउ दिस डिवीजन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉज। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ग्नैथोस का मतलब होता है जॉ, ओके। ग्नैथोस वर्ड का मतलब होता है जॉ। तो जिनमें जॉ नहीं पाया जाता वो सारे वर्टिब्रेट्स, जिनमें जॉ नहीं पाया जाता, जबड़े नहीं पाए जाते, वो एग्नेथा में आते हैं, और वो सारे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ या जबड़े पाए जाते हैं वो ग्नैथोस्टोमेटा में आते हैं, ठीक है। तो एग्नेथा आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स
jawless primitive fish like vertebrates with true jaws and paired limbs. ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें कि जॉज क्या हैं, एब्सेंट होते हैं. नाउ ये जो एग्नेथा क्लास है, ये दो क्लास एग्नेथा डिवीजन है, ये दो क्लासेस में डिवाइड होता है, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा. ऑस्ट्रैकोडर्मी इज़ एन एक्सटिंक्ट ग्रुप. ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है, इसका कोई भी लिविंग मेंबर आज के डेट में प्रेजेंट नहीं है. ये एक्सटिंक्ट ऑर्डर है. ठीक है, इसमें जो है वो प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव फिश लाइक एनिमल्स जो पाए जाते थे, और इनको वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट भी कहा जाता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर कि इनको वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट कहा जाता है. ठीक है, ये वर्ल्ड के पहले वर्टिब्रेट कहे जाते हैं. जैसे सिफलैप्सिस, ये इसका एक एग्जाम्पल है, या ड्रिपेनोप्सिस ये दूसरा एग्जाम्पल है. बट दे आर, दिस इज़ द एक्सटिंक्ट ग्रुप. ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है ना, इसका कोई भी मेंबर इस समय लिविंग नहीं है. दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमेटा. ये लिविंग ग्रुप है, इसके मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं. साइक्लोस्टोमेटा वर्ड इसलिए पढ़ा है क्योंकि साइक्लॉस का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी इनका मुंह जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है. ठीक है, गोल गोल होता है. इनकी बॉडी ईल लाइक होती है, विदाउट स्केल्स, कोई स्केल्स नहीं पाए जाते, एंड विदाउट जॉज एंड लेटरल फिन्स. ना ही जॉज प्रेजेंट होते हैं और ना ही लेटरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देन माउथ राउंडेड है, सक्टोरियल है, मतलब सक करने का काम करता है. गिल्स इनमें 5 to 16 पेयर्स हो सकते हैं. ये पैरासाइट हो सकते हैं या स्कैवेंजर हो सकते हैं. पैरासाइट मतलब जो दूसरे होस्ट पे फीड करे, दूसरे होस्ट पे डिपेंड करे अपनी फीडिंग के लिए, और स्कैवेंजर जो कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको साफ़ करने का, जो भी एनिमल या डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं उनको साफ़ करने का काम करते हैं उन पे फीड करके. ठीक है, इसमें दो एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज़ लैम्प्रे पेट्रोमाइजॉन एंड हैगफिशेस, दैट इज़ मिक्जीन्स. ओके, कॉमन नेम है लैम्प्रे और हैगफिशेस, और साइंटिफिक नेम है इसका पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्जीन. जो दूसरा इसका क्लास डिवीज़न है दैट इज़ ग्नैथोस्टोमेटा. ग्नैथोस्टोमेटा वो डिवीज़न है जहाँ पर कि जॉज, ट्रू जॉज जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इसमें दो सुपर क्लास आते हैं, एक है पाइसीज और एक है टेट्रापोडा. पाइसीज में सारी फिशेज़ आती हैं, जितनी फिशेज़ आप देखते हैं वो ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन पाइसीज. ये एक्वेटिक होती हैं, इनमें पेयर्ड लिम्ब्स पाए जाते हैं या फिन्स पाए जाते हैं. मीडियन फिन प्रेजेंट होता है. स्किन यूजुअली मॉइस्ट और स्केली होती है. रेस्पायरेशन गिल्स से होगा. एंड सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं, जो कि पानी में सेंस लेने का काम करते हैं, अलग अलग तरह का. ठीक है, दूसरा जो इसमें सुपर क्लास है दैट इज़ टेट्रापोडा. टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडॉस पॉड्स या लेग्स या अपेंडेजेस को कहा जाता है. तो चार पैरों पे चलने वाले जो होते हैं दे आर नोन एज टेट्रापोडा. ठीक है, चौपाया जिनको हम कहते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन टेट्रापोडा. एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कुछ आर्बोरियल हो सकते हैं, मतलब कुछ एरियल भी हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं इनके. इनमें पेयर्ड पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब प्रेजेंट होता है. पेंटाडेक्टाइलस मतलब 5 उंगलियां जो है वो प्रेजेंट होती हैं. मीडियन फिन एब्सेंट होता है. स्किन यूजुअली ड्राई और कॉर्निफाइड होती है. रेस्पायरेशन ये लंग्स से करते हैं क्योंकि मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं या एरियल मोड के होते हैं, तो रेस्पायरेशन जो है वो लंग्स से करेंगे, और ये जो है वो फंक्शनल होंगे एयर में. ठीक है, तो जो सुपर क्लास पाइसीज है इसमें जितने मेंबर्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, और टेट्रापोडा में दे आर एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट सम स्पीशीज़, एक्सेप्ट सम क्लास जिसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक्वेटिक हैं. ओके, नाउ जो पाइसीज है इसमें फिशेज आती हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स हैं. ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, और पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं. इनमें 3 क्लास होते हैं, ब्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज.
प्लैकोडर्मी जो इसका क्लास है, इसमें भी बहुत सारे एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव क्लास है। पहले की फिशेस, पुरानी फिशेस इसमें हैं, और ये भी, इसमें भी बहुत सारे एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका है क्लाइमेटियस, ठीक है। जो आज की डेट में लिविंग फिशेस हमें देखने को मिलती हैं, दे आर आइदर कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज के कैरेक्टर्स हैं दैट दे आर मोस्टली मेराइन, ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, और ऑस्ट्रिकथीज में जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, बोन्स का बना होता है। तो इनको कार्टिलेजिनस, कॉन्ड्रिकथीज को कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, सी फॉर कॉन्ड्रिकथीज, सी फॉर कार्टिलेजिनस, और ऑस्ट्रिकथीज को बोनी फिशेस भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। कॉन्ड्रिकथीज are mostly marine, cartilaginous endoskeleton, skin with placoid scales. This is very important character कि इनके स्किन में placoid scales, स्केल्स कई तरह के होते हैं, placoid, ganoid, cycloid, tinoid, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ड्रिकथीज में जो स्केल्स पाए जाते हैं, दे आर placoid scales। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, उसके ऊपर कोई ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर, ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, यानी ओपरकुलम एब्सेंट होता है, गिल्स ओपन होते हैं, खुले रहते हैं। पेल्विक क्लैस्पर पाया जाता है मेल में फॉर टाइम ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, फॉर एग्जांपल स्कॉलियोडॉन, जिसको कॉमन भाषा में डॉग फिश कहते हैं, काईमेरा जिसको रैट फिश कहा जाता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कॉन्ड्रिकथीज का कि इनका माउथ जो होता है ये वेंट्रली प्लेस्ड होता है, माउथ जो है वो वेंट्रल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेंट्रली प्लेस्ड होता है, इनकी बॉडी के वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉन्ड्रिकथीज वो फिशेज़ हैं जिनका एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस है, ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं। दूसरी चीज़, इनमें ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। तीसरी चीज़, इनका स्केल कैसा होता है, प्लेकॉइड टाइप होता है। चौथी चीज़ कि इनमें माउथ जो है वो वेंट्रल होता है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप इसको, इन फिशेज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन ऑस्ट्रिकथीज, ऑस्ट्रिकथीज फ्रेश वाटर या मेराइन दोनों हो सकती हैं। एंडोस्केलेटन बोनी है। स्किन में वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे साइक्लॉइड है, टिनॉइड है, ठीक है। अदर देन प्लेकॉइड, प्लेकॉइड को छोड़कर ऑस्ट्रिकथीज के जो मेंबर होंगे उनमें प्लेकॉइड स्केल नहीं पाया जाता, प्लेकॉइड को छोड़कर और अदर टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। जो गिल स्लिट्स हैं उनके ऊपर एक ढक्कन या बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो उसको ढके रहता है, गिल स्लिट्स को, उसको ओपरकुलम कहते हैं। मेल में क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होता है। ये बोनी फिशेस होती हैं और माउथ इनमें फ्रंट पोजीशन पे आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, या कह लीजिए कि बॉडी के बिल्कुल सामने, जैसे सपोज दिस इज़ अ फिश, तो ये फ्रंट पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेबियो, रोहू, कॉमन फिश जो आप खाते हैं, एडिबल फिश है ये। फिर प्रोटोप्टेरस, लंग फिशेस होती हैं ये। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, और भी बहुत सारी फिशेस जो आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सुपर क्लास पाइसिस। नाउ सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लैंड वर्टिब्रेट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब पाया जाता है। 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, आगे की तरफ एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब, और ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। कॉर्निफाइड स्किन हो सकती है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। टेट्रापोडा पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4, पोडॉस का मतलब होता है फुट, तो 4 पैर वाले जो होते हैं दे आर नोन एज टेट्रापोडा। इसमें 4 क्लासेस आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया क्लास में वो मेंबर्स आते हैं, एम्फीबिया वर्ड का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एम्फी और बियोस। एम्फी मतलब बोथ, बियोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड, ये लैंड पे भी पाए जा सकते हैं। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, दोनों ही मोड ऑफ लाइफ में ये रह सकते हैं, ठीक है। पानी में रहेंगे, जो इनका मोस्टली जो इनका लार्वल फॉर्म होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है, और लार्वा जो है वो पानी में रहता है, एक्वेटिक फॉर्म होता है, गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। जो इनका एडल्ट हो जाता है वो टेरेस्ट्रियल हो जाता है,
लैंड पे आ जाता है और फिर वो लंग्स से रेस्पिरेशन करने लगता है। तो दोनों ही मोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डुअल मोड होता है इनका, ठीक है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर हो सकती है, कोई एक्सटर्नल स्केल्स इनकी स्किन पे नहीं पाए जाते, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट इनका तीन चैम्बर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनली आपने जो देखा होगा दैट इज़ राना टिग्रीना, फ्रॉग, मेंढक जो आप घरों में देखते हैं, ब्रूफो, टोड जो आप देखते हैं घरों में, या एम्बाइस्टोमा, सेलेमेंडर कहा जाता है इसको। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग, रेप्टाइलिस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है क्रीपिंग, जो क्रीप करके चलते हैं, दे आर रेप्टाइल्स। ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड हैं ये। इनकी स्किन ड्राई होती है, कवर्ड होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, हॉर्नी स्किन होती है, हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हो जाता है, क्रोकोडाइलिया को छोड़कर बाकी जितने रेप्टाइल्स होते हैं इनमें ये इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही हैं, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ऐसे एनिमल्स को पॉइक्लोथर्म्स भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉइक्लोथर्म्स। तो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स आर पॉइक्लोथर्म्स। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स से होता है। एग्जाम्पल में जैसे हेमिडेक्टाइलस जो कॉमन वॉल लिजर्ड आप देखते हैं घरों में, या यूरोमेस्टिक स्पाइनी टेल लिजर्ड कहा जाता है इसको। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कैमिलियन है, बहुत सारे जो भी क्रीपिंग एनिमल आप देखते हैं, जितने स्नेक देख रहे हैं आप, जितनी लिजर्ड्स देख रहे हैं, जितने क्रोकोडाइल्स देख रहे हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन रेप्टाइल्स। जितने टोटॉइज है या जो भी इस तरह के क्रीपिंग एनिमल्स हैं। देन द नेक्स्ट क्लास इज एव्स। एव्स टिपिकली बर्ड्स को कहा जाता है, ये फ्लाइंग होती हैं, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें फेदर्स पाए जाते हैं, जो 4 लिम्ब होता है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स के लिए। इनके बीक में, चोंच में टीथ नहीं पाए जाते, टीथ एब्सेंट होते हैं इनके चोंच में। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एव्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनको होमियोथर्म्स कहा जाता है, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, इंटरनल टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो एव्स और बर्ड्स कैसे हैं, वार्म ब्लडेड या होमियोथर्म्स हैं। जैसे इसमें बर्ड्स में बहुत सारी एग्जांपल देखिए, मोस्टली बर्ड्स क्या होती हैं, फ्लाइंग होती हैं, उड़ सकती हैं, बट इसमें एक ग्रुप नॉन फ्लाइंग बर्ड्स का भी आता है, मतलब जो फ्लाइटलेस बर्ड्स का आता है, जिनको कि रैटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो एक रैटिटी ग्रुप भी होता है, उसमें वो बर्ड्स आती हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे फॉर एग्जांपल कीवी है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, बट दे आर ऑल्सो बर्ड्स, ठीक। बट मोस्टली 99% बर्ड्स, 98%, 99% बर्ड्स जो हैं, इनका कैरेक्टर ही यही है कि ये दे कैन फ्लाई, इनका 4 लिम्ब मॉडिफाइड होता है विंग्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रूथियो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच को कहा जाता है, कोलंबा पिजन, नॉर्मल पिजन जो आप देखते हैं, गैलस फाउल, मुर्गा जो आप देखते हैं, नॉर्मल फाउल जो आप देखते हैं, दैट इज़, और भी बर्ड्स जो आप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन एव्स। एंड लास्ट एंड मोस्ट एडवांस क्लास इज़ मेमेलिया। मेमेलिया वर्ड का मतलब होता है ऑल दोज एनिमल्स विच पॉजेज मेमोरी ग्लैंड, जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है वो मेमेलिया में इंक्लूडेड होते हैं। इनकी बॉडी कवर्ड होती है हेयर्स से, स्किन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करता है। इनका जो यंग होते हैं वो सकलिंग बिहेवियर शो करते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म होते हैं और एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। सो जितने मैमल्स हैं दे आर मोस्टली विविपेरस। कुछ विविपेरस मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ इसमें एक ग्रुप है ऐसा जो अंडे भी देता है, ओविपेरस है, बट मोस्टली दे आर विविपेरस। एंड द मेन कैरेक्टर इज दैट द फीमेल पॉजेज मेमोरी ग्लैंड, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड होगी, एंड द यंग वंस शो सकलिंग बिहेवियर, यंग वंस जो है वो सकलिंग बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इकिडना है, रैट है, कैट है, डॉग है, ये सब मैमल्स में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग मैन, होमोसेपियन
sapien is also a mammal. Okay, so this is all about classification of chordata in general. chordata का ये classification है. आई होप आपके समझ में आया होगा. अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.